السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ آج بہت دنوں کے بعد اس ناول کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. رہتا تو یہ تھوڑا سا ہی ہے لیکن پھر بھی بہت لیٹ ہوتا جا رہا ہے. تو لیٹس سٹارٹ. آج عشق دلبرم کی نیکسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں جلدی جلدی. تو لیٹس سٹارٹ. اسمارا میری جان، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ میرے پیر زمین پر ہی نہیں رک کے رہے. اللہ نے چاہا تو تمہارا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا. ایسے ہی خوش رہو، آباد رہو. میں سب کا منہ میٹھا کرواتی ہوں. کب تک چکر لگاؤ گی؟ میں تمہارے لیے پوری ڈائٹ خود ہی سیٹ کر دوں گی تاکہ تمہارے لیے آسانی رہے. ماما بے حد خوش تھی. نہیں ماما، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ماما نے سب کچھ سنبھال لیا ہے. وہی کھانے پینے کا خیال رکھ رہی ہیں اور ڈائٹ بھی خود ہی سیٹ کر رہی ہیں. اس نے شرماتے ہوئے بتایا. چلو بیٹا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے. بس تم اپنا خیال رکھنا، کسی طرح کی کوئی لاپرواہی مت کرنا. ایسے معاملوں میں لاپرواہی کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اب پڑھائی پر بھی دھیان دینا چھوڑ دو. اب صرف اور صرف اپنے اور اپنے ہونے والے بچے کی صحت پر دھیان دو. یہ بھی شروعات ہے. ان دنوں اپنا خیال رکھو گی تو آگے جا کر تمہارے لیے بہتری ہوگی. شروع میں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ بچہ صحت مند ہو. ماما اسے ہدایات دیتی، ساتھ میں مزید پڑھائی کے لیے منع کر چکی تھی. وہ ماما کو یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ اس کی پڑھائی اس کے لیے کتنی اہم ہے. اسے پڑھنا تھا، کچھ بننا تھا، اپنے لیے کچھ کرنا تھا، لیکن ماما کی نظر میں یہ ساری چیزیں صرف بے وقوفی اور وقت کی بربادی تھی. ان کے مطابق اس کی جتنی پڑھائی ضروری تھی اتنی وہ کروا چکی تھی، اور ان کے مطابق ایک لڑکی کے لیے اتنی پڑھائی کافی ہوتی ہے. وہ اسے مزید ان سب چکروں میں نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، لیکن رکنا وہ بھی نہیں چاہتی تھی. وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی. اس کے ہر قدم پہ اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا اور ہر ممکن طریقے سے اسے سپورٹ کر رہا تھا، لیکن ماما کی سوئی وہیں ہمیشہ اٹکی ہوئی تھی. تو شادی کے بعد اس کی پڑھائی کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی. ان کے مطابق یہ صرف اور صرف وقت کی بربادی تھی. اس وقت میں وہ اپنے شوہر کے رشتے کو مضبوط کر سکتی تھی، لیکن آج تو جیسے اس کے ساری ٹینشنیں ہی دور ہو گئی. اس کی طرف سے ملنے والی خوشخبری نے جیسے ہر مسئلے کا حل نکال لیا تھا. فون بند کرنے کے بعد بھی اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شزرا کو فون کر کے یہ خوشخبری سنائے. ماما کے سامنے تو اس نے کھل کر ساری بات کہہ دی تھی، لیکن وہ شزرا کو یہ سب کچھ کیسے بتائے گی؟ یہ سوچتے ہوئے اسے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی اور ہنسی بھی آ رہی تھی. اس نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا اور ایکسائٹڈ سی اس کے ایک سائڈ پر کھڑی ہو کر ہاتھ ملنے لگی. کیا بات ہے؟ اس طرح سے میرے سر پر کیوں کھڑی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا. بات تو آپ کو تب پتہ چلے گی جب یہ آپ کپڑا ہٹا کر میرے پراٹھے کی شکل دیکھیں گے. اتنی پیاری شکل ہے آج کے میرے پراٹھے کی، ایک دم گول. مجھے تو یقین نہیں آ رہا یہ پراٹھا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. آپ ذرا چیک کریں، اسے آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا. وہ خوشی سے بتاتے ہوئے کہہ رہی تھی. اس کے انداز پر پہلے تو قلب کو ہنسی آئی، لیکن پھر اپنی ہنسی دباتا کپڑا ہٹا کر پراٹھے کا دیدار کرنے لگا. آج واقعہ ہی پراٹھا گول شیپ تھا جو اسے حیران کر گیا. اس نے ایک نظر پراٹھے کی شیپ اور دوسری اس پر ڈالی. کیا یہ واقعی تم نے بنایا یا گاؤں کی کسی لڑکی نے آ کر بنایا ہے؟ میں نوٹ کر رہا ہوں آج کل گاؤں کی عورتیں کچھ زیادہ ہی گھر پر آ رہی ہیں. خیریت تو ہے نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا. ہاں بالکل خیریت ہے. گاؤں کی عورتوں کو میں پسند آ گئی ہوں، اسی لیے آتے جاتے دیدار کرتی رہتی ہیں. ایک آپ ہیں جنہیں میں پسند نہیں آتی، ورنہ تو ہر کوئی مجھ سے پیار کرتا ہے. بلکہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو مجھ سے پیار نہیں کرتا سوائے آپ کے. وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی جبکہ قلب اسے نظر انداز کرتا کھانے میں مصروف ہو گیا. تمہیں اتنے سارے لوگ پیار کرنے والے ہیں، بھلا تمہیں میرے پیار کی کیا ضرورت؟ اسی پیار سے گزارا کرو. اور گاؤں کی عورتیں آتی رہتی ہیں تو ان سے سیکھ ہی لو. اچھی کوشش کرتی ہو، آ جائے گا سارا کام. لیکن یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ پراٹھا تم نے بنایا ہے، کیونکہ یہ تمہاری سوچ سے زیادہ گول بن گیا ہے. قلب نے اپنا شک سامنے بیان کیا. خبردار قلب، جو آپ نے میری محنت کو کسی اور کے نام دیا. میں اپنے گھر کے کام کسی باہر کی عورت سے نہیں کرواتی. سب کچھ میں خود کرتی ہوں اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے، اور یہ بھی میں نے خود کیا ہے ان ہاتھوں سے. وہ اپنے ہاتھ سامنے کرتے ہوئے بولے. تو ہاں بتاؤ نا کیسے کیا ہے تم نے؟ یقین کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. کل تک پراٹھا افریقہ کے نقشے جیسا تھا تو آج ایک دم گول کیسے ہو گیا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا. اسے خود پر حیرت ہوتی تھی. کہاں وہ اتنا سنجیدہ شخص جو کسی سے مسکرا کر بات بھی نہیں کرتا تھا، بات کرتے ہوئے بھی مسکرانے کی ایک خاص وجہ ڈھونڈتا تھا. اور آج کل وہ شخص جو بنا بات ہی بحث کیے بیٹھ جاتا تھا، اس وقت بھی وہ پتہ نہیں کیوں اس سے بحث کر رہا تھا، لیکن اس سے مزہ آ رہا تھا. وہ گھی کے ڈبے کا ڈھکن ہے نا، مجھے پہلے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس سے میں گول شیپ کا پراٹھا بنا سکتی ہوں، لیکن دیکھیں میرا دماغ اس کی مدد سے کتنا اچھا اور پرفیکٹ پراٹھا بنایا ہے.
بس اب مجھے کسی کی کالی نظر نہ لگ جائے اور میرا دماغ ایسے ہی کام کرتا رہے۔ وہ بے حد خوشی سے چہکی تھی۔ کلب نفی میں سر ہلاتا اپنا ناشتہ مکمل کرنے لگا۔ اب رات کو میں آپ کے لیے روٹی بھی اپنے ہاتھ سے ایسے ہی گول بناؤں گی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ جو دل میں آئے وہ کرو، لیکن اپنی پڑھائی کو اگنور مت کرو، پیپر ہونے والے ہیں، بس تھوڑے ہی دن باقی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے پیپر ان کاموں کی وجہ سے برے ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ گاؤں کی کسی عورت کو رکھ لیتے ہیں چند دن کے لیے۔ گھر کے سارے کام وہ دیکھ لیا کرے گی، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ کلب ناشتہ مکمل کرتا اپنے شوز پہنتے ہوئے کہنے لگا، نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں جانتے گاؤں کی عورتوں لڑکیوں کو، ان کی تو بس نظر ہوتی ہے میری عزت پر۔ وہ بے ساختہ بولی تو کلب کے ہاتھ رک گئے۔ گاؤں کی عورتوں کی نظر تمہاری عزت پر ہے؟ وہ کنفیوز ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ اور نہیں تو کیا، جیسے میں آپ کی عزت ہوں، آپ بھی تو میری عزت ہیں۔ اگر کوئی مجھے دیکھے گا تو بری نظر سے دیکھے گا تو آپ کو برا لگے گا نا، خون کھولے گا نا آپ کا۔ بس وہی ہوتا ہے میرے ساتھ بھی، جب کوئی آپ کو بری نظر سے دیکھتی ہے میرا خون بھی کھولتا ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے جان سے مار ڈالوں۔ اسی لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی گھر پر رکھنے کی۔ ویسے بھی گھر کا کام ہوتا ہی کتنا ہے، صفائی تو صبح صبح ہی ختم کر دیتی ہوں، بس پھر کیا سارا دن بیٹھ کر پڑھائی تو کرتی ہوں، اور پھر 4 بجے جب وہ آپ کا آدمی مجھے کچھ پکانے کے لیے دے کر جاتا ہے تب پکاتی ہوں۔ سارا دن تو فارغ ہی بیٹھے گزر جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن پیپرز میں سپلی لانے کے بعد یہ مت کہنا کہ گھر کے کاموں کی وجہ سے تم کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ وارن کر رہا تھا۔ توبہ ہے کلب، سپلی آئے میرے دشمنوں کی، میں تو اتنی اچھی ہوں، پڑھائی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ دیکھ لیجئے گا، اس سال بھی ٹاپ کروں گی۔ وہ پورے یقین سے بولی، انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا اور روز کی طرح اسے چھوڑنے دروازے تک آئی تھی۔ کلب خود حیران تھا اس کی روٹین پر۔ گھر کے کام واقعی ہی زیادہ نہیں تھے، کیونکہ یہ گھر تھا ہی چھوٹا سا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کبھی گھر کے کام نہیں کیے تھے، اور ایسے میں بنا کسی زور زبردستی کے وہ پرسکون ہو کر گھر کے سارے کام نپٹا لیتی تھی۔ اس کا کھانا بھی ہر روز بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی شخصیت کی تبدیلی نے کلب کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ بہت متاثر تھا اس سے، اسے لگا تھا کہ وہ گھر کے کام اور تھوڑی سختیوں سے تنگ کرے گا تو وہ خود ہی اسے چھوڑ کر گھر چلی جائے گی، لیکن وہ ہمت ہار کر پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے سچ میں کلب کو متاثر کر دیا تھا۔ پچھلے 1.5 مہینے سے وہ ہر طریقے سے اس کو کلب کی پسند کے مطابق بنا رہی تھی، لیکن جو چیز اس میں نہیں بدلی تھی وہ تھی اس کی بچکانہ حرکتیں، جو کبھی کبھی کلب کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتی تھی۔ کلب خود سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ آخر یہ لڑکی چیز کیا ہے۔ ہر روز جب تک وہ اس سے بحث نہیں کرتی اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ کبھی کبھی تو ذرا سی بات کو لے کر شروع ہو جاتی تھی، اور جب تک کلب بدلے میں اس سے لڑ نہ لے اسے سکون سے نہیں بیٹھتی تھی۔ اب تو کلب کو بھی اس سے بات پر بحث کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ ذرا سی چیز کو تفصیل میں چلی جاتی، کب، کیسے، کیوں، اور جب تک کلب اسے سب کچھ بتا نہ دیتا وہ اسے تنگ کرتی رہتی تھی۔ شروع میں کلب کے لیے یہ ساری روٹین بہت عجیب تھی، لیکن اب اس سے بھی عادت ہو چکی تھی۔ شزرا کا وجود اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا، وہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ بابا بہت بار کہہ چکے ہیں کہ کچھ نہ صحیح کم از کم شزرا کو اس کے گھر والوں سے تو ملانے لے آؤ۔ تقریباً 1.5 مہینہ ہو چکا ہے شادی کے بعد، صرف ایک بار اپنے گھر گئی ہے، اس کے بعد تمہارے ساتھ چلی گئی۔ تم بے شک اسے چھوڑ کر چلے جانا، لیکن اسے اس کے گھر والوں کے پاس تو لے کر آؤ۔ وہ معصوم بچی ہے، اس کا بھی دل کرتا ہوگا اپنے گھر والوں سے ملنے کا۔ اسمارا ہر ہفتے آتی ہے، اور ماشاءاللہ اسمارا کے چہرے کی خوشی دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہر ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی جب یہ سوچتا ہوں کہ اسمارا کے چہرے کی خوشی کے پیچھے کہیں نہ کہیں شزرا چھپی ہوئی ہے تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ اگر شریار کو پتہ چل گیا کہ تم نے وہاں اسے کن حالات میں رکھا ہوا ہے تو کہیں اسمارا کے چہرے کی خوشی مند نہ پڑ جائے۔ بابا کے الفاظ نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ جو بھی تھا، شزرا کبھی بھی ان حالات سے نہیں گزری تھی جن سے وہ اب گزر رہی تھی۔ بے شک وہ صبر شکر سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حقیقت بدلی نہیں جا سکتی تھی، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک قابل قبول فلیٹ ملنے کے باوجود بھی جان بوجھ کر گاؤں کے بیچ رہ رہا تھا، جہاں نہ تو وقت پر پانی آتا تھا نہ ہی گیس کے مسائل حل ہوئے تھے۔ شزرا اسے بتا چکی تھی کہ وہ دوبارہ اس نے آگ پر کھانا بنایا ہے، 2 بار اس نے آگ پر کھانا بنایا ہے، اور اسے آگ جلانے میں بہت مشکل پیش آئی ہے۔ یہ تو گاؤں کے لوگوں نے اس سے مدد کی ہے، جبکہ گاؤں کے لوگوں کو بھی وہ اس کی مدد سے منع کر چکا ہے، لیکن اس کے منع کرنے کے باوجود بھی لوگ ترس کھا کر شزرا کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ کلب جان بوجھ کر اسے یہاں پر لایا تھا تاکہ گاؤں کے کاموں سے تنگ آ کر وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے، اور اسے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ کیس اس نے آفس میں کسی دوسرے آفیسر کے ہاتھ سے لیا تھا، لیکن اسے جان بوجھ کر حویلی سے دور جانے کے لیے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ اسے ایک بہت خوبصورت فلیٹ دیا گیا تھا جو تقریباً گاؤں سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ اس میں ہر طرح کی آسائش موجود تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر وہاں نہ رہنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ شزرا کے
सर से मोहब्बत का बूँद उतारना चाहता था और इस पर ज़ाहिर करना चाहता था जो कदम इसने उठाया है वो गलत है। इसने शुरू में ही शिज़रा से बहुत सर्दमेरी और सख्ती से बात की थी, लेकिन इसकी कोई भी बात इसके दिल पर इसके लिए पलती मोहब्बत को कम न कर सकी। इसने शिज़रा को खुद से दूर रखा था। इसे यकीन था कि वो हिम्मत हार जाएगी और वापस लौट जाएगी, लेकिन ना तो वो हिम्मत हारने को तैयार थी और ना ही वापस लौटने को। वो तो बस आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। इसका और इरादा कलब के दिल पर दस्तक देने का था और कलब के इरादों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ था, और अब कलब पर डिपेंड करता था कि वो इसके इरादों में इसे कामयाब होने देगा या नहीं। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या मैं सच में पप्पो बनने वाली हूँ? असमारा, तुम मजाक तो नहीं कर रही ना मेरे साथ? मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी, बल्कि यहीं गिरकर बेहोश हो जाऊंगी। अगर ये बात झूठी निकली ना तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी का इजहार किस तरह से करे। असमारा ने इसे अभी अभी ये खुशखबरी सुनाई थी और शिजरा का दिल चाहा कि वो अभी इसी वक्त इसके पास चली जाए। मैंने तुम्हारे साथ कोई झूठ या कोई मजाक नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। और तुम्हें लगता है इतनी बड़ी बात मैं झूठ में कहूँगी तुमसे? क्या मैं ऐसा मजाक करूँगी? असमारा ने शिकवा करते हुए कहा। नहीं, तुम होने वाली फूफो के साथ ऐसा मजाक कर ही नहीं सकती। मुझे पता है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। आई लव यू। बस मेरे होने वाले भतीजे का बहुत सारा ख्याल रखना। आ रही हूँ मैं बस अपने भतीजे से मिलने के लिए, मुझे नहीं रहना इसके बगैर। और तुम्हें पता, पहले बता रही हूँ, उसका नाम मैं रखूँगी। खबरदार जो किसी ने भी इसका नाम रखा। और जैसे पहले ही वार्निंग कर रही थी, बुकिंग करवा रही थी। हाँ हाँ, तुम ही रखना, कोई हमें कोई एतराज़ नहीं। अभी से आने तो दो, दुनिया में ये सारी बातें तो बात की हैं। अभी तो मुझे परेशानी हो रही है। अभी से ही इन सब लोगों ने मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया है कि तुम यकीन करो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। तुम्हारे भाई तो मुझे बिस्तर से उठने की इजाज़त नहीं देते। अभी तो एक महीना माँ भी नहीं हुआ और यहाँ ये हालात हैं। 9 महीने पता नहीं क्या क्या होगा। वो परेशानी से इसे बता रही थी, जिस पर शजरा की बड़ी खुशी हो रही थी। हाँ हाँ, ये तो बड़े मज़े की बात है डार्लिंग, ये तो शुरुआत है। अभी तो पूरे 9 महीने तुम्हें इसी हाल में रहना है। मुझे तो सुनकर ही इतना मज़ा आ रहा है। तुम्हारा क्या हाल हो रहा होगा? वो हंसते हुए बोली। शिजरा, कितनी कमीनी हो यार, अल्लाह करे कि तुम पर भी ऐसे ही दिन आए। तुम देखना, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज़्यादा बुरी होगी। कम से कम शहरियार से जिद करके अपनी बात तो मनवा सकती हूँ, तुम तो वो भी नहीं कर पाओगी। कल भाई अपने बच्चे पर बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं आने देंगे, फिर आएगा मज़ा। वो इसे डांटते हुए कहने लगी तो शिजा को जैसे चुप लग गई। काफ़ी देर इसकी तरफ से कोई जवाब आवाज़ नहीं आई तो अस्मारा ने फ़ोन कान से उतार कर देखा। कॉल तो अभी भी चल रही थी, लेकिन वो कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? शिजरा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम और कलब भाई में कोई मसला है? वो परेशानी से पूछने लगी। हमें क्या मसला होगा, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बल्कि बहुत खुश हैं। इसने बेहद खुशी से कहा। शिजरा, प्लीज़ मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं जानती हूँ तुम दोनों के रिश्ते में कोई ना कोई मसला ज़रूर है। अभी तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल भाई को तुम्हें समझने के लिए वक्त चाहिए शिजरा। फ़िलहाल शायद वो इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहे, इसीलिए गुस्सा कर जाते होंगे, लेकिन तुम प्लीज़ इनके गुस्से का बुरा मत मनाना। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इसे समझाते हुए कहने लगी। मैं जानती हूँ अस्मारा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर चीज़ में वक्त लगता है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ इस रिश्ते को निभाने के लिए, कलब को अपना बनाने के लिए, लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पता नहीं कलब को कब मेरी मोहब्बत का एहसास होगा, कब वो मेरी मोहब्बत को कबूल करेंगे। पता नहीं कब सब कुछ ठीक होगा। कभी कभी मुझे बहुत रोना आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने साथ कलब की ज़िंदगी भी मुश्किल में डाल दी। वो कभी मेरा साथ चाहते ही नहीं थे, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ इनकी ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत थी, तो सारी सोचों को एक तरफ रख कर फिर से कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं इनकी सोच से ये बात निकालने में कामयाब नहीं हो पा रही कि मेरे जज्बात इनके लिए वक्त ही नहीं है। मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैं इन्हें बता नहीं पा रही कि मैं इनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। काश इनको मुझ पर यकीन आ जाए। अस्मारा, तुम मेरे लिए दुआ करो कि मैं इनको यकीन दिलाने में कामयाब हो जाऊँ। वो मायूसी से बोल रही थी, जबकि इसके लहजे की मायूसी अस्मारा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त लगेगा, लेकिन दिन दूर नहीं जब कलबाई को तुमसे मोहब्बत हो जाएगी और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। एक दिन आएगा जब वो पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा नाम ले लेकर चिल्लाएंगे। इंशाल्लाह वो तुमसे बहुत मोहब्बत करेंगे। वो काफ़ी परेशानी से बोल रही थी। इसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये सब कुछ ठीक होना इतना भी आसान नहीं है। फ़ोन बंद करने के बाद वो खाना बनाने के बारे में सोचने लगी। आज क्लब के ऑफिस से कोई नहीं आया था शाम में कुछ पकाने के लिए देने, इसीलिए इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पकाए। अभी इसने किचन में जाकर कुछ देखने का फैसला किया ही था कि दरवाजे के करीब रखे छापर पर नज़र पड़ी। अरे, लगता है क्लब के ऑफिस का वो बंदा कुछ रख कर चला गया। मैं भी तो फ़ोन पर मसरूफ़ थी, इन्हें देख ही नहीं पाई। पता नहीं इसने कितनी देर दरवाज़ा खटखटाया होगा। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ होता है। वो
दरवाजे से खाने की चीज़ें उठाती किचन की जानिब चलती थी। शाम में वो घर आया तो काफ़ी परेशान लग रहा था। शिज़रा तो इससे जाने की बात करने वाली थी, लेकिन इसे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई। क्या बात है कलेब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? आपके ऑफिस में कोई मसला तो नहीं? आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तबीयत ठीक है ना आपकी? खाना लगाऊं? वो परेशानी से पूछने लगी। कुछ नहीं, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, फिलहाल मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं। जब मूड होगा तो मैं बता दूंगा। वो परेशानी से बेड पर लेट गया। कलब प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाएं, बताएं मुझे आप परेशान क्यों हैं? आपकी परेशानी मुझे भी परेशान कर रही है। मैंने कहा ना शिज़रा, अभी मेरा मूड नहीं है ठीक। तुम जाओ यहाँ से। हर चीज़ में दखलंदाजी मत किया करो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है और तुम्हारी भी एक लिमिट है। वो काफ़ी रुखे लहजे में बोला। आई एम सॉरी कलब, आप प्लीज़ गुस्सा ना हो। मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी। आपकी हर चीज़ में इंटरफेयर करने की कोशिश करती रहती हूँ। आइंदा नहीं करूँगी। वो आंखों से नमी साफ़ करती इसके करीब से जाने लगे कि अचानक कलब ने इसका हाथ थाम कर इसे अपनी तरफ खींच लिया। अचानक इसकी हरकत पर वो इसके सीने से जा लगी थी। हाँ, बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करने लगी हो तुम, हर चीज़ में इंटरफेयर करती हो और फिर बेहद मासूम बनकर ये ऐसी शक्ल बना लेती हो कि कोई तुम पर गुस्सा नहीं कर पाता। बहुत मज़ा आता है ना तुम्हें मुझे तंग करते हुए? और ये आंसू क्यों बहा रही हो? तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए कि मैं तुम्हारे सामने बेबस हो जाता हूँ। तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए कि तुम अपने मकसद में कामयाब होती जा रही हो। वो इसे अपने बेहद करीब करता है, इसकी कमर में हाथ डाल चुका था, जबकि वो हैरानगी से इसे सुन रही थी कि वो क्या कह रहा था। क्या ये वही अल्फाज थे जो वो सुनना चाहती थी? वो सच में इससे आदत हो गई है मुझे तुम्हारी। जब तक तंग नहीं करती हो तब तक सुकून नहीं मिलता मुझे। जब तक तुम्हारे इस मुंह से तुम्हारी खिलखिलाहट नहीं सुन लेता चैन नहीं आता मुझे। जब सामने होती हो तब सुकून नहीं लेने देती और जब सामने नहीं होती तब भी बेचैन कर देती हो। सुकून छीन लिया है तुमने मेरा। एहसास भी है तुम्हें कि तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? वो इसके चेहरे को अपने हाथों में लेते अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, जबकि वो हैरानगी की मूरत बनी बस इसे देख रही थी, इसे सुन रही थी। इसके अल्फाज में अपनी अहमियत महसूस कर रही थी। तुम तो कुछ भी कर सकती हो ना मेरी मोहब्बत के लिए। अभी तो 4 दिन गुजरे हैं, तुम्हारी मोहब्बत में थकन शामिल हो गई। तुम तो बहुत प्यार करती थी ना मुझसे, तो फिर कैसे तुम्हारी मोहब्बत हारने लगी? मेरे लिए जान देने जा रही थी ना तुम, और मेरी ज़रा सी बेरूही तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम तो क़यामत तक मुझसे मोहब्बत करने वाली थी। 4 दिन में मोहब्बत थक गई तुम्हारी। इसकी उंगलियां इसकी कमर में सरसराती सख्ती से इसे सीने में बींच रही थी। कहो हार गई तुम, कहो हार गई तुम्हारी मोहब्बत। बस इतनी ही ताकत थी तुम्हारी मोहब्बत में। ख़त्म हो गया तुम्हारा मान, तुम्हारा इश्क। मेरे सामने आंसू मत बहाओ, अपनी हार को कबूल करो। वो इसे सख्ती से अपने साथ लगाए जैसे चैलेंज कर रहा था। ना मैं आज हारी हूँ और ना ही मैं आगे कभी हारूंगी। ये आपकी गलत फहमी है कि आपकी ज़रा सी बेरूही से तंग आकर मैं अपने कदम पीछे हटा लूँगी। ये मोहब्बत है जनाब, कोई सौदा नहीं। वो इसकी आंखों में आंखें डाले मुस्कुराई थी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, बदले में मैंने आपसे आपकी मोहब्बत मांगी तो नहीं। मैं तो रोज़े अव्वल से कह रही हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है, और इतनी मोहब्बत है कि आपकी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं। आप अपनी मोहब्बत बचा कर रखें अपनी महबूबा के लिए। मुझे आपकी मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ आपकी खुशी चाहिए। मैं आपकी आंखों से वो दुख वीरानियत ख़त्म करना चाहती हूँ, और मैं इसमें नाकामयाब नहीं हूँ। देखें, आप अपने आप को आपको नहीं लगता कि आप बदल चुके हैं? आप मुझसे छुपकर मुस्कुराते हैं, मेरी बातों पर खुश होते हैं, मेरे सामने ना सही लेकिन अकेले में सिर्फ मुझे ही सोचते हैं। आप बदल चुके हैं, माने या ना माने। अब आप वो शख्स नहीं रहे जिसकी ज़िंदगी में वीरानगी ख़त्म करने के लिए मैं आपकी ज़िंदगी में आई थी। मैंने आपको बदल दिया। मैंने आपको आपकी मुस्कुराहट लौटा दी है। आपके आंखों में वो जो बेवफाई का दुख था ना, वो ख़त्म कर दिया। भी हिम मैं कभी भी नहीं हार सकती, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जो कभी हारने नहीं देती। मैं नहीं हारी कलब साहब। मैं कल भी आपसे मोहब्बत करती थी और आज भी करती हूँ। वो पूरे यकीन से बोल रही थी। कलब ने बस एक नज़र इसके चेहरे को देखा और फिर इसके लबों पर झुक गया। इसके लबों को अपने लबों की कैद में लिए वो मदहोश हो चुका था। शिज़रा ने इसके सीने पर हाथ रख कर इसे खुद से दूर करने की ज़रा सी कोशिश की थी, लेकिन वो इसके हाथ को अपने हाथों में कैद करता इसकी कमर के पीछे ले गया और इसके लबों पर झुका। इसे मुकम्मल तौर पर खुद में कैद किए हुए था। इसका जज्बाती अंदाज इसकी सांसें तक रोक चुका था। इसने पूरी हिम्मत करके इसे खुद से दूर किया। इसका सारा वजूद कांपने लगा था। वो इससे 1-2 नहीं बल्कि 10 कदम के फासले पर जा रुकी। अपनी इस हरकत पर वो शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस इसे गहरे गहरे सांस लेता देख रहा था, जो इससे नज़रें चुराए ज़मीन को देखती अपने आप साथ होने वाली अचानक आफात पर बुरी तरह से बौखला चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता फासला मिटाता इसके बिल्कुल पास आ गया। मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत को बर्दाश्त करने की हिम्मत लाओ। इसके कान के करीब सरगोशी करता इसे समझने का मौका दिए बिना इसे अपनी बाहों में भर चुका था।
इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो हैरानगी से इसकी एक-एक हरकत को देख रही थी। अभी तक तो वो इसकी पिछली जसारत से भी ना संभली थी कि वो न जाने इसे कहाँ लेकर जा रहा था। कल्ब, वो एक लफ़्ज़ भी कुछ मत कहना। आज मैं तुम्हारी नहीं, अपने तुम्हारे दिल की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। लफ्ज़ों का इज़हार बहुत सुन चुका हूँ, आज धड़कनों का शोर सुनना है। वो बेडरूम के दरवाजे से पार होता इसके कान में गुनगुनाया, जबकि वो परेशान थी। अचानक से इसे क्या हो गया था? वो इस पर इतना मेहरबान था, ये तो नामुमकिन सी बात थी। आप ठीक तो हैं ना कलब? मुझे बहस करने वाली बीवी नहीं पसंद। तुम खुद में इतना बदलाव लेकर आई हो, लेकिन अपनी बक बंद नहीं की तुमने। लेकिन आज तुम्हारी बक मैं अपने अंदाज में बंद करूँगा। वो मुस्कुराते हुए इसे बेड पर रखता इसका दुपट्टा कंधे से उतार कर बेड से नीचे फेंक चुका था। ये क्या करने जा रहे हैं आप? इसने कमकमाते लहजे में पूछा। वही जो तुम चाहती हो, वो इसके शाने पर हाथ रखते हुए बोला। लेकिन आप तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफ़ी है, तो मेरी मोहब्बत क्यों चाहिए तुम्हें? वो इसे लाजवाब कर गया। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम दावेदार हो कि मोहब्बत तुम मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दोगी, तो अपनी कोशिश जारी रखो। मैं देखता हूँ कि तुम अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब होती हो। वो इसकी गर्दन पर झुकता अपने दहकते लब रख चुका था। नहीं, तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। वो इसकी दुखती रख पर हाथ रख चुका था। मुझे खुद पर यकीन है, जितना इंसान को होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि कल आप अपने फ़ैसले पर पछताएं। ये तो आपकी तरफ से मेरे लिए एक मौका हुआ ना। वो संभल कर बोली तो कलब भी मुस्कुरा दिया। बेवकूफ़ लड़की, अब तक नहीं समझी कि अब हालात आगे बढ़ चुके हैं, मामलात बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब भी अगर तुम्हें मौका ना दिया तो कल पछताना पड़ेगा मुझे, और मैं पछताना नहीं चाहता। इसे बेड पर लटाता जैसे अपना आप इसके हवाले कर रहा था। शिज़ा मुस्कुराकर इसकी जिसारतें खुद पर महसूस कर रही थी। इसके चेहरे के नकूश को अपने लबों से चूमता वो अपने ही अंदाज में इसे महसूस कर रहा था। आप मेरे लिए बहुत खास हैं कलब, दुनिया के हर एहसास से ज़्यादा हसीन एहसास आपने बेहद वो आप हैं। इसने बेहद मान से इसके गर्दन में अपने बाहें डाली और इसके बाजू पर अपना नाम देखता मुस्कुराया। हास तो तुम भी हो, बस बोलती बहुत ज़्यादा हो। इसने मुस्कुराते हुए इसके लबों को अपने लबों की दस्तरस में लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी शिद्दत इस पर ज़ाहिर करने लगा। शिज़रा को अपने कंधे से शर्ट सरकती हुई महसूस हुई। इसने मजबूती से कलब की कॉलर को अपने हाथों में थाम लिया था। कलब ने बेहद नरमी से इसका हाथ अपने कॉलर से हटाकर अपनी शर्ट के बटन ओपन किए और अपनी शर्ट उतारते हुए शिज़रा के दुपट्टे के साथ फेंक दी और एक बार फिर से इसके लबों पर झुका था। इसकी सांसों में अपनी सांसें बसाए वो एक अलग ही जहान में मदहोशी से खोया हुआ था। जब अचानक इसका फ़ोन बजा, शिज़रा भी इसी कैफियत से बौखला कर निकली थी। हद होती है किसी चीज़ की, ये कोई वक्त है डिस्टर्ब करने वाला? बंदा अपनी बीवी के साथ मसरूफ़ भी तो हो सकता है ना। इसके घबराने पर कलब ने मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और साथ ही शिज़रा के वजूद पर चादर डाल दी, जो इसे पूरी तरह से बहका रहा था। जी सर, आ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त खैर तो है? वो परेशानी से पूछने लगा। ओके सर, मैं अभी पहुँचता हूँ। वो एक नज़र शिज़रा की जानिब देखते हुए बोला, तुम्हारी मुश्किल आसान होगी, बुलावा आ गया, मुझे अभी ऑफिस पहुँचना होगा, एक ज़रूरी केस निकल आया है। गांव में चौधरी के लोगों ने दंगा कर दिया है, फायरिंग हुई है, गांव के चंद लोग ज़ख्मी हो गए हैं। तुम्हारे साथ मीटिंग कल रात पर रख लेते हैं। वो अपनी शर्ट पहनते हुए इससे कहने लगा, जो कि उठकर बैठ गई थी। कल तो मैं जा रही हूँ ना कश्मीर, वापस मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसने शर्माते हुए याद दिलाया। कलब की थोड़ी देर की कुर्बत ही इसे घबराने पर मजबूर कर गई थी। परसों चली जाना, कल ज़रूरी है क्या? अब आज अपनी ज़रूरी चीज़ें जी जेब में डालते हुए वो इससे कहने लगा, मैंने बता दिया है भैया को और मामा को भी, सब बहुत खुश हैं। कल ही हमारे जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कल ही जाना पड़ेगा ना। वो इसे देखते हुए बताने लगी। कलब ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिलाया। ठीक है, छोड़ आऊँगा, कल ही एग्ज़ाम देकर आना, रिज़ल्ट मैं दूंगा। बेहद नरमी से इसके माथे को लबों से छूता वो इसे बाहर आने का इशारा कर रहा था ताकि वो दरवाज़ा बंद कर ले। आप मुझे मिस करेंगे? वो इसके साथ चलते हुए कहने लगी। वो तो वक्त बताएगा कि मुझे तुम्हारी कितनी कमी महसूस हुई। वो दरवाजे से बाहर निकलता मुस्कुरा कर बोला, ऐसी वैसी आप तो मेरी याद में पागल मजनू बनकर इन गलियों में घूमेंगे। बस एक बार आपको मुझसे मोहब्बत तो हो जाए, फिर देखिएगा आपके साथ क्या क्या होता है। जितना तंग आपने मुझे किया है ना, इससे ज़्यादा तंग करूँगी। एक दिन आएगा जब आप चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया के सामने कहेंगे कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। थोड़ी देर पहले वाली शर्माहट घबराहट कहीं गायब हो चुकी थी। वो एक बार फिर से शरारती सी लड़की बन चुकी थी, जो इसे अपनी बातों से जिज करती रहती थी। चलो फिर देखते हैं कि वो दिन कब आएगा। दरवाज़ा बंद करो, वो इससे कहता बाहर निकल गया। वो दिन बहुत जल्दी आएगा
कलब और आप देखते रह जाएँगे। वो दरवाज़ा बंद करते ही यकीन से बोली और अब आकर वापस बेड पर बैठ गई। इसका दिमाग कलब की जिसारतों में जैसे कैद होकर रह गया था। इसे बार-बार इसकी थोड़ी देर पहले वाली हरकतें याद आ रही थी। कलब इतना रोमांटिक हो सकता है, इसने कभी सोचा भी नहीं था। वो इसकी सोच से ज़्यादा पहुँचा हुआ इंसान था। इसके साथ गुज़रे ये चंद लम्हे इसे बुरी तरह घबराने पर मजबूर कर गए थे। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कलब के बारे में सोच रही थी। इसका छूना, इसका पास आना। इसने खुलकर तो अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं किया था, लेकिन इसने कहा था कि वो इसके लिए अहम है, और शिज़रा के लिए वो अल्फ़ाज़ जैसे एक और वजह दे गए थे अपनी मोहब्बत के लिए कोशिश करने के लिए, अपनी मोहब्बत को जारी रखने के लिए। आज नहीं तो कल से ही वो इससे मोहब्बत करेगा, वरना इन दोनों के लिए शिज़रा की मोहब्बत काफ़ी थी। शिज़रा का ये दावा अब भी कायम था, वो इससे मोहब्बत ना दे, सिर्फ़ इसकी मोहब्बत को कबूल कर ले। इसे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। वो बस इतना चाहती थी कि कलब खुश रहे और वो कलब के साथ इसकी ज़िंदगी का एक एक ही लम्हा जिए। सो गाइस 1300 पेजेस हो गए हैं, मेरे ख्याल में बहुत है, रात बहुत हो गई है। इंशाल्लाह हम कल फिर से कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड रीड करने की। मेरे ख्याल में 174 पेजेस रह गए हैं, तो इंशाल्लाह हम अगली 2 एपिसोड में इसको ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपनी राइटर को दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।